Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Okay, so this is a one more example for you. Okay, so this is what employee ID, this is employee number, and this is employee underscore name. Okay, so let's try to find out what can be the super key. What can be the super key in this table, right? So let's check employee underscore ID. See, it is E01, E02, E03, E04, E05. All are unique values, right? 01, 02, 03, 04, 05. So I can say yes, my super keys can be the following. First can be what? Employee underscore ID. Employee underscore ID. This can be a super key, right? Next is what? Employee underscore number. So check 2264, 2271, 2281, 2294, 2299, right? They all are unique values, correct? So I can say yes, employee underscore number can also be a unique, right? So that's why it can be a super key. It can be a super key, right? Now next, okay, so if employee ID is a super key and employee underscore number is a super key, then I can say combination of both can be a super key. Yes, we can say that combination of both can also be a super key. Combination of both can also be a super key. Okay. Next, employee underscore name. No, we cannot make it as a key, right? Because there can be two Vineet, there can be two Ujjwals, right? So we cannot make this as a key, right? But employee underscore ID or employee underscore number, can I mix it and make it a new key? Yes. Why? Because these all are unique values, right? ये unique values हैं आपके पास. ये अगर duplicate होता भी है, for example ये भी विनीत है, ये भी विनीत है. ओके, अगर ये डुप्लीकेट होता भी है, राइट? सो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये क्या बनेगा मेरा E01 और साथ में आएगा विनीत, राइट? एंड सेकंड वाले में क्या होगा E02 और साथ में आएगा विनीत, राइट? सो ये दोनों अलग ही आएंगे ना हमेशा, क्योंकि ये अगर अलग अलग हैं तो ऑब्वियसली अगर सारे भी विनीत होंगे तो, लेकिन ये तो अलग है ना, ये यूनिक है, राइट? सो हर इसमें क्या होगा, हर इसमें ये तो चेंज होना ही है, ये तो चेंज होना ही है, राइट? सो दैट्स व्हाई वी कैन से मर्जिंग दीज टू कैन आल्सो बी अ सुपर की, राइट? सो आई कैन से एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी एंड एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम कैन आल्सो बी अ सुपर की. यस, यू कैन से. नेक्स्ट, employee underscore number and employee underscore name, this can be a super key. Yes, because this is unique, right? So 2264 Vineet, 2271 Unit, तो ये तो हमेशा unique रहने वाला है, right? ये अगर same भी होता है तो this will be unique only. So I can say employee underscore number and employee underscore name can also be a key, right? Can also be a सुपर की. तो अभी तक हमको कितने मिल चुके हैं? 1 2 3 4 5, राइट? 5 मिल चुके हैं. तो मैंने क्या दिया, पहले सिंगल लिया, फिर ये सिंगल लिया, ये तो मैं ले नहीं सकता था, फिर मैंने इसको इसके साथ देखा, फिर इसको इसके साथ देखा, राइट? फिर इसको इसके साथ, राइट? तो मेरे को ऐसे कितने मिल गए? 5. ओके, अगर मैं तीनों को मर्ज करूं तो क्या वो भी की बन सकता है? यस, बन सकता है. तो अगर मैं बोलूं कि मैं E01 और साथ में मैं 2264 लेता हूं और साथ में मैं विनीत लेता हूं, सो ऑब्वियसली ये दोनों यूनिक वैल्यूज हैं, तो ऑब्वियसली अगर ये भी सेम भी होता है तो ये दोनों तो यूनिक रहेंगे, राइट? सो आई कैन से दिस कैन ऑल्सो बी अ सुपर की, राइट? सो तीनों का साथ में अगर हम लोग ले लेंगे, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नंबर एंड एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, सो तीनों को अगर हम साथ में भी ले लेते हैं तो I can say that these can be a super key. This can be a super key. So these all are super keys we got from this particular table. Okay. So how I'll proceed further to check whether it is a candidate key or not. So these are all super key I got. The second type of key is what? Candidate key. Right. So how I'll check which of the following can be a candidate key. Okay. राइट? तो वो कैंडिडेट की बनाने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया है कि कौन सी की कैंडिडेट की हो सकती है, राइट? सो कैंडिडेट की का क्राइटेरिया ये है कि कैंडिडेट की, सो अगर मैं कोई भी एक सेट ले लूं तो दीज आर व्हाट, दीज आर सेट्स, राइट? 1 2 3 4, दीज आर व्हाट, सेट्स, राइट? सो कैंडिडेट की का
फंडा क्या है बेसिकली कि अगर वो प्रॉपर सबसेट होता है, so प्रॉपर सबसेट क्या होता है बेसिकली, so suppose I have two sets S1 and S2, okay, and I'll say 1,2 and 1,2,3, right? So if I want to say कि S2 is a subset of S1, S2 is a subset of S1, so इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि S2 के सारे एलिमेंट्स S1 में होने चाहिए, राइट? क्या S2 के सारे एलिमेंट्स S1 में है? नहीं है. सो आई कैन से S2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ S1, राइट? सो अगर मैं ऐसे कर दूं कि 1, 2 and 3, राइट, एंड इसमें मैं कर दूं 1 and 2. अब बताओ कि ये S2 जो है वो सबसेट है क्या? पहले तो प्रॉपर सबसेट तो बाद में आएगा, पहले बताओ सबसेट है क्या? So all the elements of S2 should be present in S1, right? All the elements of S2 should be present in S1, so I can say S2 is a subset of S1. देखो 1 and 2, these two elements are all present in the S1, right? So I can say S2 is a subset of S1, right? S2 is a subset of S1, correct? And now what is a proper subset? प्रॉपर सबसेट इज नथिंग बट S2 के सारे एलिमेंट्स S1 में होने चाहिए और S1 के सारे एलिमेंट S2 में नहीं होने चाहिए. ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, S2 के सारे एलिमेंट्स S1 में होने चाहिए बट S1 के सारे एलिमेंट्स S2 में नहीं होने चाहिए. तो देखो प्रॉपर सबसेट है क्या? देखो S2 के सारे एलिमेंट्स S1 में है, 1 और 2 इसमें प्रेजेंट है, और S1 के जो सारे एलिमेंट्स है 3 is absent here, right? 3 is not there here. So it means what? S2 is also a proper subset of S1. S2 is also a proper subset of S1. Okay? So this is basically a subset का फंडा. कि subset क्या होता है basically कि all the elements of a particular set should be present in another set, but all the elements of another set cannot be present on the same set, right? So that is what the subset is all about. Okay? So let me take one set here. So I'll take any one can take. I'll take this one. So employee underscore ID and employee underscore name, right? Employee underscore ID and employee underscore name, right? So this is a particular set. So how many sets I can make from this? एक तो employee underscore ID, right? And second one is what? Employee underscore name and employee underscore name. Okay, and third one it can be both, right? It can be both employee underscore ID and employee underscore name, right? एक ले लिया मैंने, तोड़ दिया एक करके एंड पूरा एक सेट ले लिया, right? Now मेरे को चेक करना है. सो ये सपोज मैं ले लेता हूँ, ये मेरा S1 है और ये मेरा S2 है. ओके, तो S2 के सारे एलिमेंट्स S1 में प्रेजेंट है, यस, एम्प्लॉय आईडी इज प्रेजेंट इनसाइड दिस, और S1 के सारे एलिमेंट S2 में प्रेजेंट नहीं है, यस. सो आई कैन से दिस S2 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ S1, राइट? S2 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ S1, सो दिस इज करेक्ट, आई कैन टेक दिस, राइट? अब देखो एम्प्लॉय अंडरस्कोर नंबर, सो इसको मैं S3 ले लेता हूं सपोज, तो S3, सो ये एम्प्लॉय अंडरस्कोर नंबर इसमें प्रेजेंट है बट इसके सारे एलिमेंट्स यानी एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इज मिसिंग हियर, right? So I can say this I also can take, right? I can take, right? Why? Because इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होने चाहिए बट इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, और ये क्राइटेरिया मेट हो रहा है, राइट? इस एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इज प्रेजेंट इनसाइड दिस बट इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम मिसिंग है, राइट? इसमें एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी मिसिंग है क्योंकि मैंने सेट को तोड़ दिया, राइट? अलग अलग ले लिया और साथ एक पूरा का पूरा सेट ले लिया. अब क्या मैं ये सेट ले सकता हूं? देखो क्या S4 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ S1? देखो all the elements of this should be present inside this, that's true, but all the elements of this is also present inside this, so that is not correct, right? So I can say I cannot take this, I cannot take this. Why we cannot take this? Because इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है बट इसके भी सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए. Okay, so I cannot take this, I cannot take this. Okay, so I can say that employee underscore ID and employee underscore name are the two proper subsets, right? Now what you have to check for the candidate key. कैंडिडेट की चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी. देखो क्या एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी सुपर की है? यस, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी सुपर की है, राइट? सो आई कैन से दिस कैनॉट बी अ कैंडिडेट की, दिस सेट कैनॉट बी अ कैंडिडेट की. सो आई हैव रिजेक्टेड दिस सेट टू बी अ कैंडिडेट की. व्हाई आई हैव रिजेक्टेड? व्हाई? बिकॉज इसका जो प्रॉपर सबसेट आया ना वो एक सुपर की है,
और वो हमें नहीं चाहिए, वो हमें नहीं चाहिए। ओके, सो ये एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इज अ सुपर की, दैट्स व्हाई आई कैन से ओके ये कैंडिडेट की नहीं हो सकता। अब इसके क्या बनेगा, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नंबर एंड एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, राइट। एम्प्लॉय अंडरस्कोर नंबर है क्या, यस, so I can say this cannot be considered as a candidate key। और इसमें तो ऑलरेडी एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी नंबर सब है, राइट, और एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी सिंगल में आएगा तो ये ऑलरेडी सुपर की है ही, राइट। सो आई कैन से दिस कैन नॉट बी अ कैंडिडेट की, दिस कैन नॉट बी अ कैंडिडेट की। और इसमें भी एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी है और ये भी क्या है, ये भी एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी है और ये भी सुपर की है। सो आई कैन से दिस कैन नॉट बी अ कैंडिडेट की। ओके, सो कैंडिडेट की का फंडा क्या है, आपको एक सेट का प्रॉपर सबसेट निकालना है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट शुड बी प्रेजेंट इन द फर्स्ट बट ऑल द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द सेकंड। ओके, सो इससे मैंने निकाल दिया कि भाई इसको मैं तोड़ दिया तो ये एक अलग सेट बनेगा, ये एक अलग सेट बनेगा और ये दोनों का एक और सेट बनेगा, बट वो दोनों का सेट प्रॉपर सबसेट का क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा था तो मैंने वो निकाल दिया, राइट। नाउ एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी मिला, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी इज अ सुपर की, यस, सो ये सुपर की है तो इसका मतलब है कि ये जो सेट हमने लिया था दैट कैन नॉट बी अ कैंडिडेट की, दैट कैन नॉट बी अ कैंडिडेट की, कैंडिडेट की नहीं बन सकता, राइट। नाउ एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी का सबसेट क्या बनेगा, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी का सबसेट क्या बनेगा, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी का कोई सबसेट बनेगा ही नहीं क्योंकि ये इकलौता है, राइट, एक ही है, right। So I can say employee underscore ID and employee underscore name, this can be considered as a candidate key, these two can be considered as what, these two can be considered as candidate key, candidate key, ठीक है। तो ये दो क्या हो सकते हैं, आपके कैंडिडेट की हो सकते हैं, राइट। सो सुपर की इतने सारे मिले थे, हमने क्या किया, सुपर की में से एक सेट उठाया, कोई भी सेट उठाया, उसका क्या प्रॉपर सबसेट निकाला और प्रॉपर सबसेट निकालने के बाद हमको पता चला कि भाई प्रॉपर सबसेट का जो एक एलिमेंट है वो ऑलरेडी सुपर की है, सो दैट कैन नॉट बी अ कैंडिडेट की। ओके, सो ये सारे कैंडिडेट की के ऑप्शंस हमारे निकल गए। सो अभी हमारे पास सिर्फ दो ही बचा है, ये और ये, राइट। सो इन दोनों में से हमारा कोई भी हम बना सकते हैं एज अ कैंडिडेट की। ओके, सो सुपर की हमको समझ गया, कैंडिडेट की हमको समझ गया, राइट। अब आते हैं इन दोनों कैंडिडेट में से, ओके, आपको किसको एज अ थर्ड की सिलेक्ट करना है, विच इज व्हाट, विच इज द प्राइमरी की, प्राइमरी की। ओके, सो फर्स्ट हमने देखा सुपर की, सेकेंड हमने देखा कैंडिडेट की एंड थर्ड हम देखेंगे कि भाई इसमें से हम प्राइमरी की कौन सा निकाल सकते हैं।